Hello students, we are going to start the next chapter, that is dissolution of partnership firm. So this is the last chapter of partnership. Here we will see that how the partnership firm is dissolved, how the business of partnership uh, is wind up, what are the accounts which are to be prepared at the time of dissolution of partnership firm. But before starting anything, I would like to give some information to you all that there is a difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership means just change in the profit sharing ratio of partnership. Like just ratio is changed only. Ratio is changed, nothing else. Like at a time of admission, retirement, death of a partner, there is a dissolution of partnership also. But dissolution of partnership firm means to wind up the business, to close the business, to break down the business. Then business will not take place anymore. At the time of dissolution of the partnership, yeah, after the dissolution of partnership, the business will continue. But at the time of dissolution of partnership firm, the business is closed. Okay, so this is the basic difference. Now some important things which I would like to discuss, that is modes of dissolution of partnership firm. How the partnership firm can be dissolved. Number one, by mutual agreement. If all the partners give their consent that they are going to close the business, in that case, with a mutual agreement, the business of the firm can be closed. Number two, compulsory dissolution. Sometimes firm is compulsorily dissolved on two cases. Case number one, when all partners except one became insolvent. Number two, when business of the firm becomes unlawful. Then on happening of some important events also, the business can be dissolved. For example, on the expiry of terms for which the firm was formed, on the completion of the ventures for which the firm was formed, on the death of a partner, on the adjudication of partners as insolvent. Then by notice, partnership at will. In case of partnership at will, by giving the notice, the firm can be dissolved. Even sometimes court can also dissolve the firm by giving its order. In following cases, court can issue the orders to close the partnership firm. These cases are when a partner has become of unsound mind, when a partner is permanently incapacitated, when a partner is found guilty of misconduct, when there is persistent breach of partnership agreement by a partner, when the court is satisfied that it would be just and equitable to dissolve the firm. Okay, these may be the cases when partnership firm can be dissolved. But when the firm is to be dissolved, what are the accounting calculations which are required to be done? In this case, we have to prepare the following things. Number one, realization account. Number two, capital account of the partners. And number three, bank account. Now, take first of all realization account. Realization account. रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों वो अकाउंट है
बिकॉज जब वन फर्म इज डिजॉल्व ऑल द अकाउंट्स आर क्लोज्ड, सिर्फ सारे अकाउंट्स बंद करके एक ही अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया जाता है, और जो लाइबिलिटीज़ को पे करनी होती हैं, देखो रियलाइजेशन अकाउंट इज़ दैट अकाउंट इन विच ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड, मीन्स एसेट्स आर सोल्ड एंड और लाइबिलिटीज़ आर पेड। और लाइबिलिटी मीन्स जब हमारे पास बिजनेस फर्म को डिसॉल्व करना है तो हमारे पास एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। हम सारे एसेट्स को बेच देते हैं और उस पैसे से हम लाइबिलिटीज़ को पे कर देते हैं। अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स प्रॉफिट के तौर पे कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, जो पार्टनर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और पार्टनर्स के एसेट्स कम होते हैं तो लॉस हो जाता है। पार्टनर्स अपने घर से पैसा लाते हैं कैपिटल अकाउंट में, बाई बैंक क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग, और वो फिर हम उससे वो पे करते हैं लाइबिलिटीज़ को, और इस तरह उनको लॉस हो जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करा जाता है और फिर उनको वहाँ बेच दिया जाता है, और फिर लाइबिलिटीज़ को वहाँ पे किया जाता है। अगर लाइबिलिटीज़ कम है, एसेट बेच के पैसा ज़्यादा आता है, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाता है, जो पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दिया जाता है। अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो लॉस हो जाता है, जो पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, जिसमें पार्टनर्स अपने घर से पैसा ले आते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टू एसेट्स। ये सारे एसेट्स हमने लिखने हैं। कौन कौन से एसेट्स हैं ये? जो एसेट्स जो बैलेंस शीट में एसेट्स लिखे हुए हैं वो सारे एसेट्स हमने यहाँ लिखने हैं। ओके, वो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट में पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। और लाइबिलिटी लिखी होगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय लाइबिलिटीज़। ओके, अब किन किन एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है और किन किन एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एसेट्स को ट्रांसफ़र करते वक्त देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन क्लास में मैं ये चीज़ आपसे पूछूंगा कि जब एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन से एसेट बैलेंस शीट में जो लिखे हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। यहाँ पर नंबर 1, पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करनी है। पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करनी है। कौन कौन सी? ये देखिए, पार्टनर्स कैपिटल नहीं ट्रांसफ़र करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में हो सकती है किसी की, अदरवाइज़ एसेट में कैपिटल नहीं होती, लेकिन किसी एक आध की हो सकती है कभी कभार बाई चांस। तो कैश या बैंक अकाउंट एसेट में होता है, वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना। एक्यूमुलेटेड लॉसेज जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस वहाँ पड़ा हुआ हो सकता है, उसको भी आपने यहाँ बैलेंस शीट में पड़ा होगा एसेट साइड में, उसको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना है। बाकी सारे एसेट्स आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर देने। इसी तरह लाइबिलिटीज़ जब हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, उन लाइबिलिटीज़ को आपने यहाँ ट्रांसफ़र करना है पहले। लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज़ होंगी जो ट्रांसफ़र होंगी और कौन सी लाइबिलिटीज़ होंगी जो ट्रांसफ़र नहीं होंगी? तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पार्टनर्स लोन भी, यहाँ भी पार्टनर लोन टू पार्टनर होगा एसेट में, तो वो भी यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। अब ये 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ लाइबिलिटीज़ में लिखी होती हैं लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी। पहला तो पार्टनर की कैपिटल हमेशा लाइबिलिटीज़ में होती हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, याद रखिए। दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो 5 मेन होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, रिज़र्व, रिज़र्व फंड, जनरल रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंटीजेंट रिज़र्व, ये 5 ट्रांसफ़र नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताए हैं जो पर्पसफुल रिज़र्व हैं, जैसे
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व लिखा हुआ है, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हुआ है, ये फंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पर। फिर से सुन लीजिए, जो फंड पर्पसफुल होते हैं जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये फंड तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ लाइबिलिटीज़ के साथ। लेकिन जो मेन फंड है 5 जो पूरे पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और वो कौन से हैं? वो हैं रिज़र्व फंड, जनरल रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंटीजेंट रिज़र्व। ये पांचों कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। पहले भी आपने इनको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही लिखा है, तो इन पांचों को ट्रांसफ़र नहीं करना है, बाकी रिज़र्व को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मान लीजिए ABC 3 पार्टनर हैं और कैपिटल के अलावा ए ने फर्म को 10,000 का लोन भी दिया है, तो वो लाइबिलिटी साइड में लिखा होगा वो पार्टनर्स लोन है, वो पार्टनर का लोन भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी। एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल किसी की अगर डेबिट में पड़ी एसेट में तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, कैश या बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेज ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसके अलावा अगर लोन टू पार्टनर लिखा हुआ है, लोन टू पार्टनर मतलब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, वो अगर है तो वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। लाइबिलिटीज़ को जब हम बैलेंस शीट से उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे तो कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ नहीं लिखनी है? पार्टनर की कैपिटल नहीं लिखनी क्योंकि ये भी लाइबिलिटी में होती है। 5 मेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो कौन से हैं? रिज़र्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंटीजेंट रिजर्व। इन पांचों के अलावा जो रिजर्व हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व या इस तरह का कोई और होगा, आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह भी, वो सब यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखिए आपने बैलेंस शीट से देख के एसेट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, लाइबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। अब एसेट को हम बेचेंगे, जब हम बेचेंगे तो हम लिखेंगे बाय बैंक। देखो कुछ नहीं लिखा, स्टॉक बिका तो भी बाई बैंक, लैंड बिकी तो भी बाई बैंक, बिल्डिंग बिकी तो भी बाई बैंक, जो भी बिकेगा बाई बैंक ही होगा। एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, स्टॉक बिका बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है, लैंड बिकी बैंक टू रियलाइजेशन, प्लांट एंड मशीनरी बिकी बैंक टू रियलाइजेशन, लैंड एंड बिल्डिंग बिकी बैंक टू रियलाइजेशन। तो जब ये बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन की एंट्री होगी। और कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं, फर्म ख़त्म हो रही है, कोई एसेट वो ले लेते हैं, उस केस में हमें बैंक में पैसा नहीं आता, हम पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं। मान लो ए ने ले लिया तो बाय एज कैपिटल, बी ने लिया तो बाई बीज कैपिटल। तो अगर एसेट बिकेगा तो बाई बैंक, एसेट नहीं बिकेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इस तरह आपके सारे एसेट्स बिक जाएंगे। अब ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये लाइबिलिटीज़ पे करनी है तो वो इस तरफ पे करनी है, टू बैंक करके, टू बैंक। क्रेडिटर्स को पे किया, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। बिल्स पेबल को पे किया, रियलाइजेशन टू बैंक। आउटसाइडर लोन पे किया, रियलाइजेशन टू बैंक। तो सारा यहाँ एक ही बैंक ही आएगा बस। इसके अलावा अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ABC जो भी है, ठीक है, ओके। अब एसेट्स, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो रियलाइजेशन करते हैं हम, तो रियलाइजेशन करवाने का क्योंकि जब हम रियलाइजेशन करते हैं, एसेट को बेचते हैं, तो एसेट की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। वैल्यूएशन के लिए कई बार वैल्यूएटर बुलाने पड़ते हैं बाहर से, तो कुछ खर्चे भी हो जाते हैं डिसोल्यूशन के ऊपर, उनको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को हम पे करते हैं, तो यहाँ पर टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक। अच्छा, अब कई बार क्या होता है बच्चों कि बैलेंस शीट में कोई एसेट है, टाइपराइटर, जो नहीं लिखा बैलेंस शीट में, क्योंकि टाइपराइटर है वो बैलेंस शीट में नहीं है, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब वो पे तो बिकेगा तो सही, रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड होता तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जरूर रिकॉर्ड होता, रिकॉर्डेड नहीं है तो हम उसको यहाँ एसेट के साथ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यहाँ हम वही चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखी हुई हैं। अब टाइपराइटर लिखा नहीं है बैलेंस शीट में, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है कि एक टाइपराइटर था जो बैलेंस शीट में नहीं लिखा, अब वो बिक गया 2,000 रुपये में, तो बिकने की एंट्री हमने करनी है बाई बैंक 2,000। हाँ, यहाँ उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं था। इसी तरह कई हमारी लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं नई,
जो लाइबिलिटीज़ में नहीं है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कोई लाइबिलिटी नहीं लिखी हुई है, वो नहीं लिखी होगी तो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन अब अगर पे हो रही है तो पे तो करनी ही है, तो टू बैंक करके हम उसको पे कर देते हैं। ठीक है। अब एसेट ट्रांसफ़र किए, एसेट बेच दिए या पार्टनर ले लिए, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की, लाइबिलिटीज़ बेच दी या पार्टनर ले ली, रियलाइजेशन के अगर खर्चे हुए तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए। अब अगर हमारी क्रेडिट वाली साइड बड़ी होती है तो प्रॉफिट हो गया, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट। उसको हम करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन प्रॉफिट। जो भी पार्टनर ए बी सी जो भी रेशो है उनका, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप बन जाएगा और यहाँ आप लिख देंगे, उसको आप यहाँ लिख देंगे और ये टोटल हो जाएगा। अगर ये साइड बड़ी पड़ जाती है तो ये लॉस है, डेबिट साइड बड़ी हो जाती है, हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, जो भी है लॉस वो यहाँ लिखा जाएगा और बराबर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट और सीखेंगे बैंक अकाउंट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।